वेलकम टू झार प्रेप। इस वीडियो का बेनिफिट आप लोगों को तभी हो पाएगा जब आप लोग खुद से इस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जब टेस्ट ख़त्म हो जाता है तो एनालाइज करेंगे कि कितने मार्क्स आप लोगों को आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ लुइस ममफोर्ड्स ऐसे डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ? अचीविंग फिजिकल फिटनेस, फाइंडिंग अ बैलेंस्ड डाइट, personal growth and self-discipline, historical accounts of minors. What will be the answer? The answer will be personal growth and self-discipline. ये जो हम लोग ऐसे आज कर रहे हैं जिसका नाम है डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ, जिसे लिखा है लुइस ममफोर्ड जी ने, उसका मेन थीम क्या है? उसका मेन थीम है पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिसिप्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एसे, why is there no single formula for achieving personal transformation? Because people should always follow the same set of rules, because each individual has unique needs and potential, because intellectual development is the same for everyone, because everyone needs to read the same books. The answer will be because each individual has unique needs and potential. Because each individual has unique needs and potential, that is the reason there is no single formula for achieving पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है अपने पर्सनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एग्जांपल इज गिवन इन द एसे टू इलस्ट्रेट द डिफरेंट नीड्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड मैनुअल वर्कर? The need for balanced diets, the need for political responsibilities, the need for intensive study of books, the need for physical fitness. The answer will be the need for political responsibilities. वो क्या एग्जाम्पल दिया गया हुआ ऐसे में जो दर्शाता है अलग अलग नीड्स को इंटेलेक्चुअल और मैनुअल वर्कर्स का? तो द नीड फॉर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए, how does the essay suggest that the intellectual worker can achieve balance in life? By reading the 100 best books, by engaging in manual labor and political responsibilities, by avoiding all physical work, or by sleeping over the wireless? The answer will be by engaging in manual labor and political responsibilities. ऐसे क्या सजेस्ट करता है कि इंटेलेक्चुअल वर्कर जो हैं वो कैसे अपने लाइफ में बैलेंस अचीव कर पाएंगे? तो बाय एंगेजिंग इन मैनुअल लेबर में एंगेज होके और अपना पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। चलिए, what observation is made about the habits of the current generation of minors in comparison to the older generation? They read books by Carroll and Mill during work breaks. They maintain a strong sense of purpose and self discipline. They read newspapers and listen to the radio but lack self discipline. They have improved physical conditions but have the same mental attitude. The answer will be they read newspapers and listen to the radio but lack self discipline. क्या ऑब्जर्व कर पाया है राइटर ने कि हैबिट्स ऑफ द करेंट जनरेशन ऑफ माइनर, जो अभी के जनरेशन का माइनर्स हैं ओल्डर जनरेशन के कंपैरिजन में, कि अभी के जनरेशन के जो माइनर्स हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रेडियो को सुनते हैं, पर सेल्फ डिसिप्लिन में लैक करते हैं। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एसे, व्हाट इज द फर्स्ट रूल फॉर ऑटोनोमस डेवलपमेंट दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन? लर्निंग फ्रॉम द 100 बेस्ट बुक्स, हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, providing for one's own needs and self regulation, dependence on others for all aspects of life. The answer will be providing for one's own needs and self regulation. इसी के हिसाब से पहला रूल ऑटोनोमस डेवलपमेंट का, एजुकेशन जिस पे एजुकेशन को फोकस करना चाहिए, क्या है? प्रोवाइडिंग फॉर वंस ओन नीड और सेल्फ रेगुलेशन। चलिए, व्हाट इज द आइडियल पर्सन अकॉर्डिंग टू द एसे?
someone who relies on others for their needs, someone who avoids self-reliance, someone who is codependent, someone schooled in self-reliance. The answer will be someone schooled in self-reliance. आइडियल पर्सन का डेफिनेशन क्या है ऐसे के हिसाब से? समवन स्कूल्ड इन सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर होना. चलिए, what daily tasks and skills are considered essential for personal development as mentioned in the essay? Reading books, copying text and listening to the radio, making one's own bed, cleaning one's room and cooking meals, dependence on others for all household tasks, sleeping over the wireless. The answer will be making one's own bed, cleaning one's room and cooking meals. डेली टास्क और स्किल ऐसे के हिसाब से क्या कंसिडर किया है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? कि हम लोग अपना बेड, अपना रूम साफ करना और अपना खाना बनाना. चलिए, what does the essay suggest is the main way to free oneself from claims to service that originate from times of universal slavery? Is it intellectual development, physical fitness, dependence on others, or learning to be self-reliant? The answer will be learning to be self-reliant. ऐसे क्या सजेस्ट करता है कि मेन वे क्या होना चाहिए कि एक इंसान अपने आप को फ्री करे फ्रॉम द क्लेम्स एंड सर्विस ऑफ यूनिवर्सल स्लेवरी का, कि अगर हम सेल्फ रिलायंट हो जाए यानी हम आत्मनिर्भर हो जाए तो हम यूनिवर्सल स्लेवरी से बाहर निकल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एसे by Louis Mumford? The historical development of minors' conditions, the benefits of reading books by Carroll and Mill, the importance of self-reliance and personal growth, the impact of newspaper and radio on daily life. The answer will be the importance of self-reliance and personal growth. प्राइमरी फोकस क्या है ऐसे का जिसे लुइस मम्फर्ड जी ने लिखा है कि इम्पोर्टेंस समझे हम सेल्फ रिलायंस को, आत्मनिर्भरता का, और पर्सनल ग्रोथ को, अपने आप को पर्सनली कैसे ग्रो करना है उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को हम समझ जाएंगे. तो यही है इस एसे का प्राइमरी फोकस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मम्फर्ड suggest intellectuals might benefit from in addition to intellectual pursuits? Engaging in manual labor or active political responsibilities, focusing solely on intellectual pursuits, avoiding any physical work, spending more time on leisure activities. The answer will be engaging in manual labor और एक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मम्फर्ड जी क्या सजेस्ट करते हैं? इंटेलेक्चुअल्स को कैसे बेनिफिट हो सकता है इंटेलेक्चुअल परसूट्स के अलावा. परसूट्स यानी कि एक्टिविटीज़, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ करते हैं उससे अलावा किस चीज़ से उन्हें बेनिफिट हो सकता है कि अगर वो मैनुअल लेबर में अपने आप को इंगेज करें और एक्टिव पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपना निभाएं तो इनसे उनको बेनिफिट हो सकता है. किनको? इंटेलेक्चुअल्स को. चलिए, अकॉर्डिंग टू मम्फर्ड, what did the Victorian worker do to study books thoroughly? Listened to audiobooks, copied books by hand, read books during breaks at work, engaging in group discussions about books. The answer will be copied books by hand. मम्फर्ड जी के ऐसे के हिसाब से जो विक्टोरियन एरा के वर्कर होते थे वो किताब को, कोई भी किसी भी बुक को थरली कैसे पढ़ते थे, तो वो अपने हाथों से उस बुक को जो भी लिखा हुआ था उसे कॉपी करते थे और जब कॉपी करके फिर से लिखते थे तो उनका थॉरो रीडिंग हो जाता था. चलिए, व्हाट डज मम्फर्ड बिलीव these basic tasks of self-reliance help individual achieve? Is it a dependence on others for household chores, historical patterns of servitude and dependence, excessive reliance on technology, intellectual superiority over manual laborers? The answer will be historical patterns of servitude and
डिपेंडेंस। तो मम्फर्ड जी क्या बिलीव करते हैं कि बेसिक टास्क सेल्फ रिलायंस का, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होने का, खुद से अपना टास्क करने का क्या होना चाहिए। तो उनका कहना है कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ सर्विट्यूड, सर्विट्यूड मतलब गुलामी, एंड डिपेंडेंस, फ्री वन सेल्फ, यहाँ पे होगा आपका फ्री वन सेल्फ, ठीक है, फ्री वन सेल्फ, फ्री वन सेल्फ फ्रॉम हिस्टोरिकल पैटर्न्स ऑफ सर्विट्यूड एंड डिपेंडेंस, अपने आप को फ्री करना गुलामी से और किसी पे डिपेंडेंसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मम्फर्ड्स व्यू ऑन अ सिंगल फॉर्मूला फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन? Is it A? It is necessary for individual growth. It is readily available in intellectual pursuits. It is unattainable and varies for each individual. It is achievable through political involvement. The answer will be it is unattainable and varies for each individual. मम्फर्ड जी का व्यू क्या है कि सिंगल फार्मूला फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने का, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इंसान टू इंसान वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mumford suggests that personal transformation and self-direction require following a rigid routine, adopting someone else's formula, active engagement and modification of one's life, avoiding physical labor and political involvement. The answer will be एक्टिव एंगेजमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ वंस लाइफ। मम्फर्ड जी क्या सजेस्ट करते हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक्टिवली एंगेज करना है अपने आप को और मॉडिफाई भी करते जाना है अपने ज़िंदगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एसे, व्हाई आर बेसिक हाउस होल्ड स्किल्स इंपॉर्टेंट? टू reinforce traditional gender roles, to encourage servitude and dependence, to free oneself from historical patterns, to maintain cleaning and order. The answer will be to free oneself from historical patterns. Basic household skills, important skills क्या है कि अपने आप को फ्री करना हिस्टोरिकल पैटर्न से, जो पैटर्न्स चला आ रहा है उससे अपने आप को फ्री करना, ठीक है। चलिए, Mumford suggests that the transformation of life requires modification. What does this modification entail? Entail यानी modification का मतलब क्या क्या इन्वॉल्व करता है, क्या क्या चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है इस मॉडिफिकेशन में। इज इट ए फॉलोइंग अ सिंगल फार्मूला फॉर पर्सनल ग्रोथ, relying on external guidance and instructions, pursuing a balanced diet and exercise routine, adjusting one's life according to individual needs? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा एडजस्टिंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। क्या सजेस्ट करते हैं मम्फर्ड जी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ का रिक्वायरमेंट क्या है मॉडिफिकेशन के लिए, और मॉडिफिकेशन में किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तो एडजस्टिंग वंस लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स, जैसे इंडिविजुअल का, इंसान टू इंसान का जैसे जैसे नीड्स हो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the essay emphasizes the importance of intellectual pursuits for which group? Is it a manual workers, children, intellectuals, or political leaders? The answer will be intellectuals. ऐसे का एम्फेसिस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स किस ग्रुप में, तो इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप को इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स समझ में आता है। चलिए, what is the first rule for autonomous development according to the essay? Achieving balance and self-direction, seeing intellectual pursuits, relying on others for guidance, providing one's own wants, and regulating one's own life. The answer will be providing for one's own wants and regulating one's own life. पहला रूल क्या होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट का ऐसे के हिसाब से,
कि प्रोवाइडिंग फॉर वंस वांट्स, अपना जो वांट्स है उसको प्रोवाइड करे, और रेगुलेटिंग और ओन लाइफ, यानी खुद का लाइफ को खुद संभालिए। चलिए, द essay suggests that intellectuals might benefit from engaging in manual labor, pursuing advanced degrees, isolating themselves from society, or avoiding political responsibilities. The answer will be engaging in manual labor. ऐसे क्या सजेस्ट करता है? इंटेलेक्चुअल्स को किस चीज़ से बेनिफिट हो सकता है? मैनुअल लेबर में अपने आप को एंगेज करके। चलिए, इसी प्रकार ख़त्म हो जाता है यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ऐसे था। बहुत ही हमें डिसिप्लिन अपने डेली लाइफ में किस किस तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, उस चीज़ को बारे सिखाता है हमें। और इसके बाद के लेसन्स भी आते जाएंगे। आप लोगों को ये टेस्ट देते जाना है और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।